A very good morning to all of you. In the previous lecture, we had discussed about the biotechnological applications in the medicine. So we had discussed about the two methods. One is the genetically engineered insulin and the second one is the gene therapy. So now I am going to discuss with you the very next method, that is molecular diagnosis. So what happens, this method is actually used for the early detection of the disease, because the early detection of the disease is not possible with the conventional diagnosis method. So some techniques are used so that the disease can be early diagnosed and it can be treated well. So the very first one is the PCR, that is polymerase chain reaction. So in this method, the low concentration of the pathogen in the body doesn't allow its detection. Sometimes what happens, the pathogen is at very low concentration, so it doesn't allow the detection at the early stages. So the nucleic acid of the pathogen, whether it is a bacteria or the virus, is amplified by the process of the PCR for its detection. So it is basically used in the detection of the HIV in suspected AIDS patients and in the genetic mutations in the suspected cancer patients. So this treatment, this method is used for the molecular diagnosis by the amplification of the PCR. Basically the nucleic acid of the pathogen is amplified many times so that it can be easily detected whether the disease is there or not. Second thing is the recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. So in the recombinant DNA technology, a single stranded DNA or RNA, they are tagged with the radioactive molecule, and that is known as probe. When a single strand DNA or RNA, it is attached with the or tagged with the radioactive molecule, it is known as the probe. So in this method, a probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in the clone of the cells. Now these cells are then detected by the autoradiography. So the cell with the muted gene will not be observed on the photographic film because the probe was not complementary to the muted gene. So it helps in easily identifying the disease. So what happens, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होता है, वी शुड टैग, हम उसे टैग करते हैं किसके साथ, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, एंड दे फॉर्म अ प्रोब. अब इस प्रोब को हाइब्रिडाइज किया जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, ताकि इन द क्लोन ऑफ द सेल्स, एंड देन उन सेल्स को हम डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू. तो जो म्यूटेड सेल है, म्यूटेड जीन है, वो कभी भी फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएगा, बिकॉज जो प्रोब है वो म्यूटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देता. नेक्स्ट थर्ड वन इज द अलीसा, दैट इज एंजाइम linked immunosorbent assay. सो दिस इज़ द टेस्ट जो कि प्रिंसिपल जो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. सो ईदर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स or the presence of antibodies that are produced against the pathogens are detected. So इन टेस्ट में क्या होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है. इधर जो है एंटीजन्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है, और द अनदर थिंग जो एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द पैथोजेंस वो डिटेक्ट हो जाते हैं. सो जिससे कि हमें पता लग जाता है कि वेदर द पर्टिकुलर डिजीज इज़ देयर और नॉट. सो नेक्स्ट अनदर थिंग इज़ द fourth method of biotechnological applications in medicine is the stem cells.
Now what are stem cells? Stem cells are undifferentiated biological cells. ये वो cells होते हैं biological cells जो differentiate कर जाते हैं special cells में जब divide होते हैं to produce the more stem cells, or even they give rise to the more different cells and the tissues. तो stem cells जो हैं they are found only in the multicellular organism. अडल्ट स्टेम सेल्स जो है हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं मेडिकल थेरेपीज़ में, जस्ट लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में स्टेम सेल्स को लिया जाता है फ्रॉम द अम्बिकल कॉर्ड ब्लड जस्ट आफ्टर द बर्थ. आजकल आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में पहले ही वो कंडीशन होती है कि इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व द स्टेम सेल ऑफ द बेबी जस्ट आफ्टर द बर्थ, बिकॉज ये उसी टाइम पॉसिबल होता है, बिकॉज दीज स्टेम सेल्स दे आर वेरी यूजफुल एज दे आर हेल्पफुल टू ट्रीट डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर एंड मैनी मोर डिजीज़. तो अगर हम किसी बेबी के जस्ट आफ्टर बर्थ उसके अम्बिकल कॉर्ड का जो ब्लड होता है उसको स्टेम सेल प्रिजर्व करवा देते हैं, तो इन फ्यूचर अगर उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू दिस एंड मैनी मोर देन दिस, तो वो जो है डैट इज़ क्योरेबल, बिकॉज दिस स्टेम सेल दे हैव अ वेरी मच पोटेंशियल टू क्योर दिस डिजीज़. नाउ नेक्स्ट इज़ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. So what are transgenic animals? These are those animals whose DNA is manipulated, जिनका DNA हम manipulate कर देते हैं, अपनी मर्जी से change कर देते हैं to possess and express an extra gene, जिसमें कि हम possess कर सकें और express कर सकें extra gene को, जिसे हम कहते हैं transgenic animals. टिल डेट हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप्स एंड काउस जो है प्रोड्यूस कर लिए हैं ह्यूमन बींग्स ने. सो फॉलोइंग आर द कॉमन रीजंस. कुछ रीजंस हैं. सबसे पहले हम लोग ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं ये इसलिए बनाते हैं सो डैट वी कैन स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है ये हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं टू स्टडी द जीन रेगुलेशन, उनका इफ़ेक्ट ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड उनकी डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, तो इन सबको स्टडी करने के लिए हम लोग जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जो कि जीन रेगुलेशन में बहुत एफिशिएंट होता है और बहुत सारी हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़. नाउ जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनकी जो जीन्स की हम स्टडी करके ये देख सकते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ इन ह्यूमंस. कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो ह्यूमंस में भी हो सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जीन्स की स्टडी करने के साथ, और उनका हम कैसे उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो बहुत सारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हैं डेवलप करे गए हैं फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज़, जैसे कि कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, आर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर के लिए और भी सो ऑन डिजीज़. तो हम डिज़ीज़ की स्टडी करने के लिए भी जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हैं एनिमल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और उनमें ये देख सकते हैं कि कैसे वो उन पे इफ़ेक्ट करते हैं एंड हाउ दे कैन बी ट्रीटेड. नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. सो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास यूज़फुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में करते हैं. पोर्शन जो है डीएनए का या जीन्स का हम वो डालते हैं विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्रोटीन बनाया गया था टू ट्रीट द एम्फीसीमा, तो वो हमने पहले उन पे टेस्ट करा था. देन इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ हम लोगों ने बनाई थी, डैट इज़ नोन एज अ रोज़ी, जो कि बहुत अच्छा ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क जो है प्रोवाइड कराता है. तो ये जो मिल्क है इसमें अल्फ़ा लैक्टी अल्ब्यूमिन है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल है देन द कॉमन
नेचुरल काउ एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बेबीज़। सो इस तरह के बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं तो उनके ऊपर पहले हम टेस्ट कर सकते हैं, एंड मोर ओवर हम उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हेल्प से हम बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ वन इज़ द वैक्सीन सेफ्टी। सो वैक्सीन सेफ्टी में ट्रांसजेनिक माइस जैसे डेवलप किए गए हैं टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन्स बिफोर बीइंग यूज्ड ऑन ह्यूमंस। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स बनाते हैं, डॉक्टर्स नए नए वैक्सीन्स बनाते हैं, तो उनको ह्यूमन बींग्स पे टेस्ट करने की बजाय हम लोग पहले उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, सो डैट वी कैन टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। वन ऑफ द सच एग्जाम्पल इज़ द पोलियो वैक्सीन, जो कि पहले ट्रांसजेनिक माइस पे हम लोगों ने टेस्ट करा था। नेक्स्ट इज़ द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं, इनकी भी पहले सेफ्टी टेस्टिंग हम कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं ये जीन्स कैरी करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के एक्सपोजर में वो आते हैं तो उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत लेस टाइम में हमको स्टडी करने में मिलते हैं रैदर देन कि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। सो सम ऑफ द टॉपिक्स आर लेफ्ट दैट वी complete in the next further lecture. So that's all for today students. Thank you and have a nice day.